Hello students, welcome back to my channel Economics Made Easy. This is Deepak Roy. As I have discussed already in government budget, the topics which we have covered, that is meaning of government budget, second one is objective of government budget, types of budget in which we have studied state budget, central budget, and also I have discussed about revenue budget and capital budget. Now we are going to study about is concept of budget deficit. First of all, we will know the meaning of budget deficit. What is the meaning of budget deficit? Budget deficit simply means total expenditure of the government is greater than total receipts of the government. That is known as budget deficit. Now we'll go for is types of budget deficit, in which we'll study revenue deficit. The very first one is revenue deficit. Now what is the meaning of revenue deficit? Revenue deficit means when revenue expenses of the government are greater than revenue receipts. When revenue expenses of the government are greater than revenue receipts of the government, that is known as revenue deficit. Now formula to find out revenue deficit is revenue expenses minus revenue receipt. What is the formula? Revenue expenditures minus revenue receipts. That is the formula to find out revenue deficit. Now we are going to read is implications of revenue deficit. Means what are the impacts of revenue deficit? The very first one is de-saving. De-saving, what the meaning is of this? De-saving means use of previous savings by the government create the problem of de-saving. हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. सपोज आपके अकाउंट में 10,000 एज अ सेविंग्स है. आज लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास इनकम नहीं है. आपने क्या किया? आपके पास जो अकाउंट में 10,000 रुपीज है, उसमें से आपने 5,000 रुपीज यूज किया. दैट हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ दिस सेविंग. मतलब आपके जो पास 10,000 रुपए थे, उसमें से आपने 5,000 विड्रॉ कर लिया. दैट इज टर्म्ड एज दिस सेविंग. इन द सेम वे गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेस इट्स प्रीवियस सेविंग्स. नाउ second one is increase in liability of the government. Government, to meet its expenses, developmental work and all that, its daily expenses, government need to borrow fund from IMF, from World Bank or from RBI. As much as government borrows, it increases liability of the government. जैसा कि मैंने बताया था, अगर सपोज आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया तो आपकी लायबिलिटी 1 रुपए से बढ़ती है. अगर आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए, आपकी लायबिलिटी 10 रुपए की हो जाती है, एंड सो ऑन. ठीक है, उसी तरीके से गवर्नमेंट जितना भी बोरो करेगी, लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस बाय दैट मच अमाउंट. नाउ द थर्ड वन इज विशेष सर्किल ऑफ डेट ट्रैप. व्हेन गवर्नमेंट इज इन शॉर्टेज ऑफ फंड, गवर्नमेंट बोरोस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस. Whenever government is borrowing from external sources such as IMF, World Bank for the developmental work in the economy, then government spends those amount in developmental work. Now, the government is not having that much of amount to repay the interest amount. Then to repay that interest amount, government will have to borrow again. And the process continues. This is termed as vicious circle of debt trap. Now the fourth one is decrease in asset of the government. Government sells its shares, securities to the private. That is, it decreases financial asset of the government. Now the last one is, that is fifth point, inflationary pressure. अब आप सोचेंगे ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे क्रिएट कर सकता है रेवेन्यू डिफिसिट. अभी अभी हमने देखा इंक्रीजेस लायबिलिटी. गवर्नमेंट बोरो कर रही है, क्यों? एक्सपेंस करने के लिए. तो गवर्नमेंट अगर या तो बोरो करती है या फिर वो न्यू करेंसीज इशू करती है इकोनॉमी में, बोथ
increases money supply in the economy, and with the increase in money supply, aggregate demand जो है economy में that will also increase and will create the problem of inflation in an साथ ही साथ हम इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे. सपोज न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है आइटम एंड यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू इन करोड़. अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या है आइटम रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट आपको दिया हुआ है 200 करोड़ और यहां पे हमको दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 350 करोड़. नाउ अभी अभी हमने फॉर्मूला इसका देखा था टू फाइंड आउट रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 350 करोड़ माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है 200 करोड़. आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 350 माइनस 200 150 करोड़. दिस इज हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एग्जांपल. चलिए अब हम ये देखेंगे फिस्कल डिफिसिट. फिस्कल डिफिसिट क्या है? फिस्कल डिफिसिट का मतलब है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. अदर देन बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. यहां पे फॉर्मूला हम देखेंगे टू फाइंड आउट फिस्कल डिफिसिट. फॉर्मूला इज fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts of the government other than borrowings and other liabilities. borrowings and other liabilities इसलिए लिया हमने यहाँ पे क्योंकि fiscal deficit itself shows total borrowing of the government. ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा फॉर्मूला है borrowings and other liabilities. अगर आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल में दिया हुआ है या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक हेडिंग अगर दिया हुआ है टोटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर्स और उसके अंदर अगर आपको दिया हुआ है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, इफ यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज तो वो गलत नहीं होगा. ठीक है. नाउ अब हम समझेंगे इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डिफिसिट. इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डिफिसिट में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं wasteful expenditure. Wasteful expenditure means government does expenses in those areas wherever it is not required. अब बोलेंगे कौन सा एरिया ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करती है. हमने यहाँ पे नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर भी देखा था और वो भी नॉन प्लांट में नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी देखा था. सच एस अगर हम बात करें गवर्नमेंट लग्जरी, गवर्नमेंट लग्जरी है दैट इज नॉट अ कंपल्सन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज ऑप्शनल फॉर द गवर्नमेंट. लेकिन अगर गवर्नमेंट उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करती है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रही है दूसरे अदर एरियाज में, तो दैट इज टर्म्ड एज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. अब हम दूसरा देखेंगे पार्शियल यूज. पार्शियल यूज क्या है? अब हम देखेंगे क्या पार्शियल यूज. पार्शियल यूज में क्या है? गवर्नमेंट बोरोस फॉर डेवलपमेंटल वर्क या फिर आप बोल सकते हैं फॉर द रीपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट. देखिए गवर्नमेंट ने अगर डेवलपमेंटल वर्क के लिए बोरो किया है लेकिन गवर्नमेंट अगर उसमें से ज्यादातर पैसा यूज कर रही है फॉर द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज टर्म्ड एज पार्शियल यूज. अच्छा, आफ्टर ऑल जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? दैट इज रिटार्ड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी. रिटार्ड का मतलब होता है हिंड्रेंस, मतलब बाधित करना. किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ में ये बाधा बनता है. कैसे? इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू. सपोज आप अगर आज लोन लिया हुआ है
तो कल अगर आपके पास इनकम है तो आपकी पहली प्रायोरिटी रहेगी टू रीपे दैट लोन अमाउंट, प्रिंसिपल है या फिर द इंटरेस्ट अमाउंट है। मीन्स अगर आपने 10,000 का भी लोन अमाउंट रीपे किया या फिर 10,000 का आपने इंटरेस्ट अमाउंट रीपे किया है, दैट 10,000 कुड हैव बीन यूज्ड समवेयर एल्स फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। वो हुआ क्या? नहीं हो पाया वो। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है, फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट के पास किसी भी सोर्स से इनकम जनरेट होता है, रिसिप्ट अगर आता है गवर्नमेंट के पास, then government's first priority will be to repay the interest amount or to repay the principal amount which government has borrowed, and thus the fund which could have been utilized, which would have been utilized in the further development growth of an economy, that has not been done just because of the borrowed fund, and that is why it is termed as retard future growth of an economy. चलिए अब जो फिस्कल डिफिसिट है उसको हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू। अभी अभी मैंने आपको बताया था फिस्कल डिफिसिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। मैंने टोटल रिसिप्ट के साथ एक चीज और लिखा था, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, है ना, एक्सेप्ट देन या फिर अदर देन बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही आ जाएंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 300 और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 60, है ना। तो कितना हो जाएगा? 300 प्लस 60, ठीक है, माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स में दो चीजें आएंगी, पहला है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट के हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स दे रखे हैं, पहला है रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स और दूसरा है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। तो अभी अभी हमने देखा था कि बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज हमको इसमें से एग्जिट करना है। तो कितना यहां पे दिया हुआ हमको? 200 माइनस हम क्या करेंगे अब? रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स। कितना हो गया? 30। कितना हो जाएगा वैल्यू? 360 माइनस 230 कितना हो जाएगा अब यहाँ पे? 130। अब देखिए इसका जो वैल्यू है ये, और बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज का वैल्यू दैट इज आल्सो 130। इसका मतलब ये है कि ये वाला मेथड आप यूज करें, या तो फिर डायरेक्ट अगर आपने बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज का वैल्यू लिख दिया इन इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट, वो भी गलत नहीं होगा, यू विल बी अलॉटेड फुल मार्क्स। चलिए अब हम देखेंगे प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट क्या है? प्राइमरी डिफिसिट शोज compulsion of the government for the borrowings against the interest payment, against the interest payment। अच्छा, प्राइमरी डिफिसिट जो है, प्राइमरी डिफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्राइमरी डिफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इट अगेन इज शोइंग कंपल्सन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द बोरोइंग, फॉर द बोरोइंग। चलिए इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ द प्राइमरी डिफिसिट। इंप्लीकेशंस ऑफ द प्राइमरी डिफिसिट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट बिहेवियर, मतलब गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है अंडर द कंपल्सन ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब गवर्नमेंट किसके लिए बोरो कर रही है? फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट और फॉर द डेवलपमेंटल वर्क ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, प्राइमरी डिफिसिट ये भी दिखाता है इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स फिस्कल पॉलिसी, या फिर आप बोल सकते हैं फिस्कल डिफिसिट। अब आप बताएंगे कैसे? देखिए, मोर इज द प्राइमरी डिफिसिट, it shows that the government is not concerned or is not worried about the future growth of an economy। या फिर अगर हम बात करें कि if less is the primary deficit, it shows that government is more and more concerned about the growth of an, या फिर आप बोल सकते हैं future growth of an economy।
go. चलो इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला हम लेंगे यहाँ पे आइटम में सबसे पहले हम लिखेंगे बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, और दूसरा हम देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट। सपोज करो यहां पे हम लिखेंगे वैल्यूज रुपीस इन करोड़। यहां पे हमने लिखा 130 करोड़ और यहां पे मैंने लिखा 60 करोड़। तो यहां पे प्राइमरी डिफिसिट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब हमको सबसे पहले फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है, फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट यहां मैंने फॉर्मूले में, फिजिकल डिफिसिट के फॉर्मूले में यह बताया था कि फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। तो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज का वैल्यू कितना है अपने पास, यहां दिया हुआ है 130 करोड़। ठीक है, दूसरा जो हमको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट क्या करना है, प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या हो जाएगा, फिजिकल डिफिसिट कितना आया 130 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया हुआ है 60 करोड़, कितना हो जाएगा 70 करोड़। दिस इज व्हाट प्राइमरी डिफिसिट। थैंक यू। फॉर एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, do subscribe and like the channel. Thank you for watching.